Hi guys, so let's start with today's class. So this is the first class for CB1. ठीक है. So how many papers do you have right now? I have just given one. Okay. So today is the session, orientation session for CB1. So what we would be discussing in today's session is I would be taking you through the entire index portion. Now after going through the entire index portion, we will basically be first understanding how to handle this particular subject. So this subject is completely different from all the numerical subjects. जो अभी तक आपने numerical subjects करे हैं, those require basically what numerical subjects require is a bit of understanding, a bit of conceptual understanding, and then you can appear for the exam, or then you can attend the questions. But CB1 is completely different from all the numerical subjects. What it requires is basically understanding of the conceptual topics, and then once you have understood the conceptual topics, you basically have to produce in your own words. So let us first quickly go through the index, and then we will be discussing like what exactly we have to do. So this is the index. Now 2021 से 2022 तक भी काफ़ी चेंजेस हैं सिलेबस के अंदर. सो मेक श्योर कि आप CMP अपग्रेड जरूर रीड कर रहे हो. आर यू अवेयर ऑफ व्हाट इज CMP अपग्रेड? एक होता है एक्टेड की बुक जो मटेरियल हम लोग रेफर करते हैं. सेकेंड थिंग इज हर साल मटेरियल में कुछ चेंजेस होते हैं. लाइक 2019 में अगर मटेरियल इशू हुआ है और 20 पे हम आ रहे हैं तो वो बोल देते हैं कि अच्छा 20 से 19 में ये चेंजेस हुए हैं, वो उसमें सिर्फ चेंजेस अटैच कर देते हैं. सिमिलरली 20 से 21 में चेंजेस अटैच, 21 से 22 में चेंजेस अटैच. तो आपको नया मटेरियल नहीं परचेज करना. इन केस यू हैव 2019 मटेरियल, यू कैन जस्ट रेफर द CMP अपग्रेड. तो CMP अपग्रेड बहुत ज़रूरी है. अब CMP अपग्रेड में काफ़ी चेंजेस मेंशन्ड है फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट. सो वी विल बी डिस्कसिंग ऑल द चेंजेस एज एंड व्हेन अ पर्टिकुलर चैप्टर हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो हम सारे चेंजेस उसमें इनकॉर्पोरेट कर लेंगे. लेकिन अब कोई चीज़ अगर चेंज हुई है, जैसे मीन्स अगर कोई नया टॉपिक आया है तो वो डेफिनेटली टेस्ट होगा ही होगा एग्जाम के अंदर. ठीक है. अब कितने चैप्टर्स हैं? एनी आइडिया? कोर्स में कितने चैप्टर्स हैं? So earlier we used to have 22 chapters, but now we don't have 22 chapters. We have 21 chapters. One chapter has already been removed. So chapter 16 is now removed from the course. This has been added to chapter 14. मतलब 2021 से 2022 में क्या चेंज आया है कि चैप्टर 14 की एडिशन हो चुका है चैप्टर 16. चैप्टर 16 अब कोई चैप्टर है ही नहीं. So now you don't have 22 chapters, we have 21 chapters in the course. This is the first change. Second change क्या है? चैप्टर 2 के अंदर बिजनेस ओनरशिप, इसके अंदर कुछ एडिशंस हुई हैं. चैप्टर 3 के अंदर कुछ एडिशंस हुई हैं. देन 9 to 12 के कुछ कंटेंट में चेंज आया है. देन अगेन 18 to 22 में कुछ एडिशंस है. सो देयर आर लॉट ऑफ एडिशंस टू द कोर्स इंस्टेड ऑफ withdrawals and relaxations. Lot of additions are there in the course. Now let's just quickly have a go through of the chapters. So देखो chapter 1 क्या है? Key principles of finance and corporate governance. So ये क्या है? मुश्किल से आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 5 मार्क्स का आपको मतलब इसकी पूरे चैप्टर की वेटेज क्या है? मुश्किल से 5 मार्क्स. Then we have business ownership, again not expected more than 5-7 marks. Then you have taxation, long-term finance, issue of shares, short and medium-term finance, alternative sources, use of derivatives. इन सबसे से 5 मार्कर्स ही एक्सपेक्टेड है. चैप्टर 9 से लेकर चैप्टर 12 तक आपका लॉन्ग क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है. चैप्टर 13-14 अगेन टारगेटिंग 1 लॉन्ग क्वेश्चन. Chapter 15, 17, 18 can be tested as a 5 marker, and then 19 to 22 again you have long question. So this was just a quick look through of the index. Now let's focus on how exactly we have to proceed for the course. ठीक है. So first step ये बहुत ज़रूरी है because ये सिर्फ पहली क्लास के अंदर ही मैं बताऊंगी, and उसके बाद it is expected from your side that you are basically following these steps. So now you guys have videos with you. ठीक है. But videos are just for quick reference.
ऐसा कुछ नहीं है कि जो वीडियोस के अंदर है वही सेम चीज़ आपको क्लास में करवाई जाएगी, आपको पहले वीडियोस वॉच करके रखनी है, हम लोग क्लास में सिर्फ डिस्कशन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है. सो वीडियोस आर जस्ट फॉर नॉर्मल रेफरेंस. इन क्लास आई विल बी टेकिंग थ्रू ऑल द कंसेप्चुअल नॉलेज ऑफ द चैप्टर, एंड अपार्ट फ्रॉम द कंसेप्चुअल वी वुड बी फोकसिंग ऑन पास्ट पेपर्स. सो क्लास के अंदर मेरा मोटिव क्या रहेगा? पास्ट पेपर्स प्लस कंसेप्चुअल डिस्कशन बोथ. Now it is very important that we are discussing many questions in the class. This chapter, or I would say this subject requires lot of discussion. तो इस सब्जेक्ट में सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत है, वो है बहुत ज़्यादा डिस्कशन. ये एक थ्योरी सब्जेक्ट है विच इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम योर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट. तो जितना आप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करोगे, जितना आप डिस्कशन करोगे, उतना आपके लिए हेल्पफुल होगा. और इस सब्जेक्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि पास्ट पेपर्स में कुछ भी रिपीट नहीं होता. सो दैट मीन्स एवरी पास्ट पेपर इज न्यू. डू यू गाइज हैव एनी आइडिया ऑफ लाइक व्हाट्स द पैटर्न ऑफ द सब्जेक्ट? एनी आइडिया? एनीवन फ्रॉम ऑनलाइन और ऑफलाइन? हाँ जी, पेपर का पैटर्न. Yes. How many MCQs? 10 MCQs each of 2 marks. ठीक है, 10 MCQs हम आएंगे हमारे 2 नंबर का 1 MCQ. ठीक है, नेक्स्ट इज अपार्ट कितने हो गए यहाँ पे? 20 मार्क्स हमारे यहाँ पे हो गए. ठीक है, कितने क्वेश्चंस? 5 मार्क्स वाले कितने क्वेश्चंस? 8 क्वेश्चंस और 5 मार्क्स ईच. कितना हुआ टोटल? 40. 60 यहीं पर खत्म. कितना बचा? 40. 40 बजाय 20 के 2 लॉन्ग क्वेश्चंस. सो दिस इज द पैटर्न ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट. अब क्या ये पैटर्न इंडिया IFOA दोनों के लिए वैलिड है या सिर्फ ये IFOA के लिए? Okay, so one online student is saying that it's valid for both. No, it's not valid for both. IFOA का एक स्ट्रिक्ट पैटर्न है कि इसी पैटर्न में ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपसे टेस्ट होगा. ठीक है. नाउ सेकेंड थिंग इज II का भी आज की डेट में अगर मैं आपको बोलूँ तो II हैज स्टार्टेड फॉलोइंग द सेम पैटर्न. दैट मीन्स सेम नंबर ऑफ MCQ, सेम 5 मार्कर्स, same long questions, but definitely the chapters and the concentration chapters would be different from both II as well as IFOA. अब IFOA आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है? अब ये थियोरी एग्जाम है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 90% बच्चा IFOA प्लान करता है. ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से समझना कि what actually IFOA expects from this particular subject. Okay, take 2 minutes time and just quickly tell me the difference between describe, explain in detail, set, list, discuss. So guys, everyone take 2 minutes time and just tell me the difference in all these words. Make use of your chat section. Okay, so let's discuss now. So what do you mean by describe? In detail. अच्छा, तो लिस्ट में और डिस्क्राइब में क्या डिफरेंस है? लिस्ट में आई थिंक सिर्फ पॉइंटर्स पॉइंट आउट करना. ओके, अच्छा डिस्कस में? डिस्कस लिस्ट और डिस्क्राइब के बीच. अच्छा, एक्सप्लेन? एक्सप्लेन एंड एक्सप्लेन इन डिटेल में लाइक ऑल डिटेल्स. और सेट?
अच्छा ओके, अब IFOA में ना इन वर्ड्स पे काफी फोकस किया जाता है, तो फॉर ऑल योर थ्योरी क्वेश्चंस जस्ट मेक श्योर दैट जस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स. सेट मीन्स लिस्टिंग, वन वर्ड मैक्स, मतलब एक लाइन तक एक्सटेंड कर दो, इससे ज़्यादा नहीं. लिस्ट मीन्स सेम वही, वन वर्ड और वन लाइनर डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड. एक्सप्लेन इन डिटेल का मतलब है कि आप बेशक मुझे क्वेश्चन जो है उसमें दो आइडियाज दो, लेकिन वो दोनों आइडियाज हैव टू बी इन क्वाइट डिटेल. सेम इज फॉर एक्सप्लेन, डिस्कस, डिस्क्राइब. दिक्कत कहाँ आती है? जब 5 नंबर के क्वेश्चन में बोला जाता है डिस्क्राइब, हमारे पास वैसे ही बहुत कम पॉइंट्स होते हैं और उसमें अगर मुझे डिस्क्राइब करने के लिए बोलेगा तो डेफिनेटली इशू आता ही आता है. तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं डिस्कशन और एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मार्क्स लूज करने की प्रोबेबिलिटी होती है. So we will be working on these style of questions more so that we can reach to the level of exam standard which is required. So just quickly note it down, then we will proceed further. ठीक है, तो ये सब कुछ थियोरी क्वेश्चंस के लिए यूजफुल होगा इन द कमिंग क्लासेस. नाउ हाउ आर वी गोइंग टू आंसर 5 मार्कर्स और 20 मार्कर्स? पहले इसको MCQ का क्लियर है. MCQ में सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन देना है. यू डोंट हैव टू कमेंट ऑन द रीजनिंग. लाइक मेनी स्टूडेंट्स ऑलवेज हैव दिस डाउट कि लेट्स सपोज इफ यू आर चूजिंग ऑप्शन A और इफ यू आर चूजिंग ऑप्शन B और C, then do we have to provide the reason for choosing option? You don't have to provide the reason, you only have to choose the option. Now coming to 5 markers or 20 markers, the first thing from the very first class that you guys have to understand is no paragraphs in my class, no paragraphs at all, only and only points. मुझे सिर्फ आपसे एक ही चीज चाहिए, चाहे आप 5 पॉइंट्स दो, चाहे आप मुझे 20 पॉइंट्स दो, चाहे आप मुझे 2 पॉइंट्स दो, लेकिन आप मुझे हर क्वेश्चन में आज की क्लास के बाद से सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स पे वर्क करेंगे, नो पैराग्राफ्स एट ऑल. ठीक है, अब बहुत बार कंफ्यूजन होती है दैट समटाइम्स स्टूडेंट्स आस्क मी कि मैम एग्जाम के सोल्यूशन के अंदर तो पैराग्राफ है लेकिन आप पैराग्राफ लिखने के लिए नहीं बोलते. तो जो आपको सोल्यूशन दिया होता है दैट इज जस्ट अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन. सो डोंट ऑलवेज गो थ्रू द सोल्यूशन. आपको सिर्फ पैराग्राफ्स में कुछ भी नहीं लिखना, ओनली एंड ओनली पॉइंट्स. नॉट फॉर CB1, फॉर ऑल द थ्योरी चैप्टर्स, फॉर ऑल द थ्योरी सब्जेक्ट्स, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स में लिखेंगे. ठीक है, अब CB1 आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है? अगर क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, कितने वैलिड पॉइंट्स बनाने हैं हमें 5 मार्क्स में? 5. 20 मार्क्स के हमारे पास 2 ही स्टाइल के क्वेश्चंस हैं. 20 मार्क्स में 20 वैलिड पॉइंट्स. ऑल्दो आपके कोर्स में 20 मार्कर कैसे आएगा? हो सकता है एक क्वेश्चन 10 नंबर का हो जाए, एक क्वेश्चन 5 एंड द नेक्स्ट अगेन 5. तो 10 नंबर से ज़्यादा ये लोग एक क्वेश्चन टारगेट नहीं करते, तो पार्ट वाइज होगा, बट स्टिल हाँ मैक्सिमम 10 पॉइंट्स फॉर ईच पर्टिकुलर पार्ट. आपके सिलेबस में इतना ही है. रेस्ट CP1 वगैरह में समटाइम्स क्वेश्चन कैन बी ऑफ 30 मार्क्स एज वेल. 30 मार्क्स के लिए वहाँ पर हमें कितने पॉइंट्स बनाने होते हैं? 30 into 2 विच इज 60. CB1 तक, CT सीरीज तक 1 मार्क के लिए आपको सिर्फ 1 वैलिड पॉइंट देना है. अब वैलिड पॉइंट का मतलब क्या होता है? बहुत बार बच्चा क्या करता है, लेट्स सपोज इफ आई गिव यू अ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टॉपिक डाइवोर्स ऑफ ओनरशिप फ्रॉम कंट्रोल. ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक है, ऑल्दो दिस टाइप ऑफ टॉपिक विल नॉट बी टेस्टेड. लेकिन अगर कुछ ऐसा टॉपिक पेपर में आ रहा है, एक्सप्लेन डाइवोर्स ऑफ ओनरशिप फ्रॉम कंट्रोल, इसका मतलब वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे सिर्फ एक ही चीज पूछ रहा है, एक्सप्लेन. इसमें आप जितनी मर्जी डेफिनेशंस दो, एक्सेप्टेड है.
लेकिन ये चीज़ें एक्चुअल में पेपर में टेस्ट नहीं होंगी। आई में तो स्टिल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, IFOA में डेफिनेटली इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आने वाला। IFOA में मोर ऑफ केस स्टडीज ओरिएंटेड क्वेश्चंस, दीज डेज दे आर टारगेटेड मोर ऑफ केस स्टडीज। तो केस स्टडीज के लिए व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इज नो डेफिनेशन इन केस स्टडी। अब बच्चे को हमेशा मान लो लेट्स सपोज सस्टेनेबल अकाउंटिंग का क्वेश्चन है, बच्चा क्या करता है पहले सस्टेनेबल अकाउंटिंग एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देता है एंड आप मुझे कहते हो कि नहीं 5 पॉइंट्स बन तो गए, सो नो डेफिनेशन वुड नॉट बी काउंटेड इन योर पॉइंट्स। सो मेक श्योर कि आपके पॉइंट्स करेक्ट होने चाहिए, नो डेफिनेशंस इन केस स्टडीज क्वेश्चंस, ठीक है। अब लेट मी टेक यू थ्रू IFOA वर्सेस II फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। पासिंग रेट दोनों का आप सेम एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैक्सिमम स्टूडेंट्स IFOA प्लान करते हैं बिकॉज यू नो दैट द एग्जाम इज ओपन बुक। इवन दो एग्जाम इज ओपन बुक, व्हाट डू यू थिंक, अभी आपने लास्ट डाइट में पेपर दिया है, डू यू थिंक कि हम ओपन बुक से कुछ हेल्प होती है? कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ओपन बुक न्यूमेरिकल में तो वैसे ही कोई मतलब ही नहीं ओपन बुक का। सेम गोज फॉर थ्योरी बिकॉज नथिंग कम्स डायरेक्टली फ्रॉम द बुक। सो ओपन बुक का मतलब ही यही है कि भी ठीक है आप रेफर करना चाहते हो आप कर सकते हो, बट नथिंग विल कम डायरेक्टली फ्रॉम द बुक, स्पेशली इन IFOA। II still have this chance। II का पेपर पैटर्न पता है? So for some of the students who are targeting II, as of now we are not sure, मतलब many of the hypes have started coming that II exams are offline, but ऐसी कुछ भी अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है। अगर मैं एज्यूम करूँ कि II के एग्जाम ऑनलाइन ही रहेंगे तो यू नीड वेब कैमरा एंड माइक फॉर द सेम। आपका एक सेफ ब्राउज़र के अंदर एग्ज़ाम को लॉगिन करना होगा, उसके बाद आपका वेब कैमरा इंस्टॉल्ड होगा, दैट मीन्स आप अपनी पोजीशन से मूव नहीं कर सकते। आपका माइक इंस्टॉल्ड होगा, दैट मीन्स वट एवर यू आर स्पीकिंग इट विल बी ऑटोमेटिकली बी रिकॉर्डेड। सो एंड यू आर नॉट अलाउड टू यूज एनी ऑफ द बुक। So it is like giving in the examination hall only, except that instead of giving at the hall, you are just giving at your home. So अगर आपको लगता है कि that you are prepared for II, you can go for II. The last diet का पेपर, anyone who has gone through last diet exam देखा है? नहीं देखा? Okay. So IFOA का पेपर को मैं definitely I would say it a bit tricky one compared to II. II was easily manageable if student had given sufficient time for the subject. Now why was this one easily management and this one was tricky? The only reason is English. So any idea? अब मैं इंग्लिश का क्या रीज़न बोलूँगी कि दोनों के अंदर क्या दिक्कत होएगी II वर्सेस IFOA में? IFOA में एक ही प्रॉब्लम है थ्योरी एग्जाम्स की, दैट इज इंग्लिश। हाँ, क्योंकि हमारी जो इंग्लिश होती है वो नॉर्मल लेबान इंग्लिश हम लोग बोलते हैं। व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इज कंप्लीटली टेक्निकल इंग्लिश। अब दिक्कत क्या है, वो बोल रहे हैं मुझे टेक्निकल चाहिए, लेकिन वो ये भी बोल रहे हैं कि आप कुछ भी बुक से नहीं लिख सकते डायरेक्टली। अगर आप डायरेक्टली बुक से लिखोगे तो प्लेगैरिज्म हो जाएगा। सो वहाँ पर हमें ट्रेड ऑफ मेंटेन करना पड़ता है कि मुझे कितना ज़्यादा टेक्निकल लिखना है और सेम टाइम पर ऐसा भी ना लगे कि मैं बुक से कॉपी कर रही हूँ, ठीक है। तो ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको ध्यान रखनी है। II के अंदर यहाँ पे फ़ायदा क्या हो जाता है कि हम लोग जो इंग्लिश बोलते हैं वही सेम एग्जामिनर्स टेस्ट कर रहे हैं, तो इट बिकम्स ईजी एंड कंपैटिबल टू विद द क्वेश्चंस दैट आर ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ II, ठीक है। Now we were discussing the steps that are required for this particular course throughout the entire 6 to 7 months of preparation. So first is you guys have the videos with you in which we have targeted conceptual plus past papers. अगर आप क्लास से पहले आपको लगता है कि आपके पास टाइम है, then my recommendation would be to complete your videos. It's not an obligation that definitely you have to complete it, but yes, if you think that you have sufficient time for the for the weekend class, before the weekend class you have sufficient time, then make sure you are going through the video well before the class. Now in the class I would be covering everything
कंसेप्चुअल डिस्कशन प्लस पास्ट पेपर्स। अब ये आपको न्यूमेरिकल सब्जेक्ट जैसा बिल्कुल भी नहीं पढ़ना कि हाँ हर एक टॉपिक आपको हर एक लाइन पता होनी चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। थ्योरी एग्जाम्स को हम लोग डिफरेंट वे में टारगेट करते हैं, तो योर फोकस शुड बी जस्ट एंड जस्ट ऑन द कंटेंट विच इज बीइंग डिस्कस्ड इन क्लास। सो आपका फोकस क्या होना चाहिए कि क्लास के अंदर बस जो मैंने कंटेंट डिस्कस किया है क्या वो मुझे क्लियर है, प्लस क्या मुझसे पास्ट पेपर्स हो रहे हैं। अब CB1 के अंदर क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि को रीडिंग में से कुछ भी नहीं आता, नथिंग कम्स, इट्स नॉट सेम एज CT7। CT7 में क्या होता है कि को रीडिंग में से काफ़ी क्वेश्चंस यू गेट फ्रॉम द को रीडिंग, बट CB1 में को रीडिंग में से कुछ भी नहीं आता। कुछ भी नहीं आता मतलब कौन से बुक से, लेकिन जो बुक के क्वेश्चंस हैं या जो पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होते ही नहीं है। सो एवरी टाइम वी हैव न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस, और वो आप तभी कर सकते हो जब यू आर कंप्लीटली अवेयर ऑफ द डिफरेंट स्टाइल्स। सो मेरा ये टारगेट रहेगा दैट अपार्ट फ्रॉम द को रीडिंग I am targeting different questions from different book for this particular subject। मेरे को दूसरी बुक रेफर करनी है, अदरवाइज आपके एक्चुअल की बुक सफिशिएंट इनफ है कि आपको कुछ भी और रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये सब्जेक्ट को रीडिंग के अलावा काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन मांगता है, इसलिए हम क्लास में जब एक पर्टिकुलर टॉपिक खत्म कर देंगे आई वुड ट्राई टू कवर द क्वेश्चंस रिलेटेड नॉट ओनली फ्रॉम द पास्ट पेपर्स बट ऑल्सो फ्रॉम डिफरेंट बुक्स सो दैट वी कैन रीच टू एग्जाम स्टैंडर्ड। नेक्स्ट थिंग, क्लास में अंदर टॉपिक हो गया, चाहे आप वीडियोस से करा, चाहे आपने लाइव क्लास को एक्सेस करके करा, चाहे आपने ऑफलाइन आके करा, जैसे मर्जी आप करो। नेक्स्ट थिंग इज कंप्लीशन ऑफ समरी लिस्ट। समरी लिस्ट में क्या होगा, लिस्ट ऑफ चैप्टर वाइज क्वेश्चंस बोथ फ्रॉम II एज वेल एज IFOA। तो इवन इफ यू आर गिविंग एग्जाम फ्रॉम IFOA, इस सब्जेक्ट के लिए आपको II और IFOA दोनों के क्वेश्चंस करने हैं। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स में हम बोल देते हैं कि ठीक है अगर आप IFOA प्लान कर रहे हो तो यू कैन स्किप II क्वेश्चंस, बट थ्योरी सब्जेक्ट के लिए इवन इफ यू आर प्लानिंग फ्रॉम IFOA, मेक श्योर दैट यू आर अटेम्प्टिंग बोथ द लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। So that means if a chapter is completed from my side, next step that you are supposed to do is complete your summary list. Summary list complete करने के बाद you must be provided with a schedule. Schedule देखा है कंटेंट ब्राउजर पे, नहीं देखा अभी तक? Okay, so schedule, updated schedule for April 22 is uploaded on the content browser. So what you have to do is schedule के अंदर आपको पता होगा कि मेरी assignment की deadlines है. Let's say the first deadline for chapter 1 assignment is let's say 15th November को मैंने पहली डेडलाइन रखी है, तो दैट मीन्स व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम योर साइड इज 15th November से पहले आपने उस चैप्टर की वीडियोस, उस चैप्टर की लाइव क्लासेस की रिवीजन, उस चैप्टर का समरी लिस्ट कंप्लीट करके रखना है। नेक्स्ट लेट्स सपोज चैप्टर 2 and 3 की असाइनमेंट की डेडलाइन है 30th November, दैट मीन्स 30th November से पहले चैप्टर 1, चैप्टर 2, 3 का समरी लिस्ट, वीडियोस प्लस लाइव क्लासेस रिविजन, तीनों चीज़ें आपकी तरफ से कंप्लीट हो जानी चाहिए। After assignment, next thing that we do is UTs की आपकी deadlines, again you have the dates mentioned for UTs, so बस उस particular date पे आपका UT होगा which will be marked and you will be getting the feedback from our side, and same thing is for mocks. These are different from II versus IFOA, so आपकी society के हिसाब से the way the society that you are planning, we will be sharing the UTs and mocks with you. एंड इसके बीच में इन केस यू हैव एनी डाउट्स, यू हैव टू ऑप्शंस, ईदर यू कैन रेज योर डाउट्स ऑन इंस्टीट्यूट नंबर एंड वी हैव दिस 3D Wednesday, दैट मीन्स डाउट्स एंड डिस्कशन डे, so you can come to the center on Wednesday and address your doubts. So every Wednesday I am available for your doubts, you just have to book your slot, और slot book करने के लिए आपकी रिक्वेस्ट मंडे तक आ जानी चाहिए so that you can book the slot for Wednesday. ठीक है, कोई छोटा डाउट है, आपको लगता नहीं सेशन की ज़रूरत नहीं है, मिलने की ज़रूरत नहीं है, बहुत छोटा सा डाउट है, यू कैन मेल अस और व्हाट्सएप अस, बट मेक यूज़ ऑफ दिस 3D Wednesday एज मच एज यू कैन। सिर्फ एग्जाम टाइम के लिए नहीं, एग्जाम से पहले भी जैसे जैसे हम लोग रिविजन करते जा रहे हैं वैसे वैसे यू कैन मेक यूज़ ऑफ दिस 3D Wednesday टू एड्रेस योर डाउट्स। ठीक है, सो गाइज एनी डाउट्स टू एनी ऑफ यू
in the discussion so far. This was just a general discussion of the subject. Now we will be actually going through the main content. So any doubts to any of you? Anything which is not clear? Okay, so we are starting with the first chapter, that is this finance. So start making notes. को-रीडिंग ज़रूर रीड करना. एक पर्टिकुलर चैप्टर अगर मेरी साइड से कंप्लीट भी हो जाएगा तो जस्ट मेक श्योर दैट यू आर गोइंग थ्रू को-रीडिंग बिफोर अटेम्प्टिंग द पास्ट पेपर्स. ठीक है. ओके, सो लेट्स वर्क ऑन फाइनेंस, दिस फाइनेंस चैप्टर. सो सबसे पहली चीज़ जो वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम. ठीक है. सो टेक 2 minutes टाइम, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम एंड देन वी आर फर्दर डिस्कसिंग. करें स्टार्ट. ओके, अब फाइनेंस के अंदर बेसिकली 2 मेजर इश्यूज हैं. एक इशू को कहते हैं, दिस इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम MCQ पॉइंट ऑफ व्यू, इन्वेस्टमेंट डिसीजन. दूसरे इशू को कहते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन. इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन का दूसरा नेम इज कैपिटल बजटिंग डिसीजन. So finance basically revolves around 2 issues, investment और capital budgeting decision versus financing decision. अब capital budgeting decision नाम से ही पता चल रहा है. Investment decision, कौन से real assets में invest किया जाए. We have so many different type of assets available in market. Investment decision basically targets on which type of real assets to invest in. फाइनेंसिंग नाम से कहां से पैसा आएगा, हाउ शुड द कैश बी रेज्ड. अब अगर आप सिर्फ इतना ही लिखोगे एग्जाम में तो ये सबको आता है. जिसने भी को रीडिंग को गो थ्रू किया होगा उसको पता होगा कैपिटल बजटिंग डिसीजन मींस व्हाट रियल एसेट्स शुड बी इन्वेस्ट इन. फाइनेंसिंग मींस मेरे पास वो पैसा कहां से आएगा रियल एसेट्स में इन्वेस्ट करने का. समथिंग विच विल सेग्रीगेट फ्रॉम यू फ्रॉम अदर्स इज we are expecting more details on it.
अब कौन कौन से एसेट्स में हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं? एज एन इन्वेस्टर अगर मैं आपको पूछूं कि कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो हम कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं? बॉन्ड्स में, शेयर्स को कहते हैं इक्विटी मार्केट, और बताओ? डिबेंचर्स इज अ पार्ट ऑफ बॉन्ड्स ओनली, और प्रॉपर्टी, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, और कुछ डेरिवेटिव्स, या फिर कोई और ओवरसीज इंस्ट्रूमेंट्स। ये सब कुछ अभी आपके फर्दर चैप्टर्स में आएगा, ठीक है। सो वो कहते हैं कि भाई अगर आप एक कंपनी के फाइनेंस मैनेजर हो तो मतलब आप बेसिकली क्या ओवरलुक कर रहे हो? यही चीज़ है कि भैया हमें कंपनी में कौन से एसेट्स में इन्वेस्ट करना है और हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा। तो इन्वेस्ट करने के लिए मेरे पास बॉन्ड मार्केट है, इक्विटी मार्केट है, प्रॉपर्टी मार्केट है, मनी मार्केट है, डेरिवेटिव्स हैं और कोई इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये सारी डिटेल्स आपके चैप्टर 8 तक कवर हो जाएंगी। चैप्टर 8 सारे 8 चैप्टर्स विल बी फोकसिंग ऑन ऑल दीज थिंग्स ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था कि भैया इनको इन्वेस्ट करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा। एक कंपनी को अगर पैसे की जरूरत होती है, इफ कंपनी इज इन नीड ऑफ कैश, हाउ कैन दे रेज कैश? लोन, ओके, बाय इशूइंग डेट। अब आपने बोला डिबेंचर्स, तो दैट मीन्स इफ कंपनी इज इन नीड ऑफ कैश दे कैन इशू डिबेंचर्स and we as an investor can subscribe to those debentures, ठीक है। What else apart from issuing loans? If company is in need of cash, how can they meet their need of cash? उनको लोन देने के लिए कोई भी नहीं है, फिर भी अब उनको पैसे की जरूरत है। How can they raise cash? नहीं, देखो सेलिंग, मेरे पास अगर इक्विटी है ही नहीं तो मैं उसको बेच के क्या करूंगी? मैं कंपनी हूँ, ठीक है, मेरे को 5 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। मैं कह रही हूँ मेरे पास 5 करोड़ कैसे आएंगे? आपने बोला डेट रेस कर दो, ठीक है, डेट रेस कर दिया। डेट नहीं रेस कर सकती, क्या करूँ? और इक्विटी बेचने के लिए इक्विटी होनी तो चाहिए। तो हम इसका क्या कहते हैं? बाय इशूइंग शेयर्स। अगर मैं एज अ कंपनी शेयर इशू करूंगी तभी तो आप शेयर होल्डर बनोगे और आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। सो अनदर ऑप्शन इज इशूइंग shares. We would be discussing all these details कि debentures कितने types के होते हैं, shares कितने types के होते हैं. So these are the your upcoming chapters. So that means company only has 2 methods of raising finance. One is issuing debt and the other one is issuing shares. So if I talk about the role of financial manager, अब मैं आपसे 5 marks के लिए question पूछती हूँ. Comment on the role of financial manager. ठीक है, so let's take 5 minutes time and let's discuss a question. Comment on the role of financial manager. Even if you give me 3 points, I am okay, but those should be valid points. Question is, comment on the role of financial manager. Two, 3 more minutes. Comment on the role of financial manager.
बन गए 5 पॉइंट्स. Two more minutes. So let's start discussing. करें? Any point that you would like to highlight? So online guys, start commenting in the chat section. कोई point? First, two basic points we would like to take decisions regarding capital budgeting and financing. Next, under that, to check which is more feasible and less costly to raise fund, like whether through issuing shares or through issuing debt. And the third point is to determine and analyze the most profitable real asset. Okay. For the money to be invested. ठीक है. So somehow some points are correct, बस उसका पैटर्न हमें स्टडी करना है कि अच्छा अगर ऐसा सा कोई क्वेश्चन आता है रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर तो हाउ वी वुड बी कमेंटिंग. अब ये क्वेश्चन आई के अंदर डायरेक्टली एक्सपेक्टेड है बट लेस चांसेस ऑफ दिस क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम IFOI बिकॉज अगेन इट सीम्स टू बी मोर ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चन. IFOI डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता, ऑल्दो ये डायरेक्ट नहीं है, सिर्फ इतना ही है आपके को रीडिंग में, बट स्टिल इट सीम्स टू बी मोर ऑफ IFOI. अब हम कैसे स्टार्ट करेंगे? फाइनेंशियल मैनेजर बेसिकली रिवॉल्व्स अराउंड टू मेजर डिसीजंस, कैपिटल बजटिंग and financing. मतलब first point could be financial manager is basically focusing on two major issues in an organization, capital budgeting, financing. ये आपका पहला point होना चाहिए. Next point, in capital budgeting, financial manager basically has to decide on the type of assets to be invested in. ये मैंने नेक्स्ट पॉइंट बना दिया. इन कैपिटल बजटिंग फाइनेंशियल मैनेजर बेसिकली हैज टू डिसाइड ऑन द टाइप ऑफ एसेट्स टू बी इन्वेस्टेड इन. अब देखो इसी की एक्सटेंशन, आपने अभी एक पॉइंट बोला था ना कि ही हैज टू डिसाइड कि कौन सा चूज करना चाहिए. यस, तो अब कैपिटल बजटिंग में उसको डिसाइड करना है कि कौन से एसेट्स में, तो हम इसका क्या लिख देंगे? Capital budgeting seems to be a complex decision because there are many projects to choose from and manager has to decide on the best taking into account
प्रॉफिटेबिलिटी. सो दिस कैन बी योर थर्ड पॉइंट. ऐसा ज़रूरी नहीं होगा कभी भी कि जो आपके पॉइंट्स हैं या जो मेरे पॉइंट्स हैं या जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन है वो एग्जैक्टली मैच करेगा. वी ऑल व्यू दैट इज़ वाई जितने आप पॉइंट्स क्लास में बोलोगे और जितने आप फॉर ऑल दोज हु आर टेकिंग इट ऑनलाइन जितना आप चैट सेक्शन को यूज़ करोगे उतना आई वुड बी गेटिंग एन आइडिया दैट व्हाट एग्जैक्टली पॉइंट्स यू आर राइटिंग एंड ऑन विच पॉइंट्स यू नीड इम्प्रूवमेंट. सो पूरा थ्योरी सब्जेक्ट में सिर्फ ये फीडबैक ही है जो आपके लिए मैटर करेगा. So make sure you are focusing lot on points writing. तो हमने कैपिटल पहला पॉइंट बोल दिया, हमने कैपिटल बजटिंग और फाइनेंसिंग का उसको डिसीजन लेने हैं. नेक्स्ट पॉइंट हमने बोल दिया कैपिटल बजटिंग में उसको डिसीजन लेना है कौन कौन से एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए. इसका नेक्स्ट पॉइंट हमने एक्सटेंड कर दिया कि जब वो कौन से एसेट्स में इन्वेस्ट करने का डिसाइड कर रहा है तो इट सीम्स टू बी अ कॉम्प्लेक्स डिसीजन एज ही हैज टू डिसाइड ऑन द प्रोजेक्ट्स टू चूज फ्रॉम एंड ही हैज टू गो फॉर द बेस्ट टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रॉफिटेबिलिटी. अब 3 पॉइंट्स हो गए. एक आधा पॉइंट कुछ ले आते हैं उसका फाइनेंसिंग का. ठीक है. नाउ वाइल टेकिंग फाइनेंसिंग डिसीजन मैनेजर बेसिकली has to decide how should the cash for investment be raised. Whether to go for issue of shares or via issue of debt. सो नेक्स्ट पॉइंट हमने टारगेट कर दिया कि मैनेजर को डिसाइड करना चाहिए फाइनेंसिंग में कि कहाँ से कैश रेज होगा. कैश रेज करने के लिए 2 ऑप्शंस है, या तो आप शेयर इशू कर लो या डेट. तो सी मैं कैसे इसको दूसरे पॉइंट पे लेके जा रही हूँ. तो एक ही पॉइंट में सब कुछ मत लिखना, मेक डिफरेंट पॉइंट्स. अब यहाँ पे मेरे 5 पॉइंट्स खत्म हो जाते हैं. ठीक है. लेकिन अगर आपको कुछ और एडिशनल आता है तो आप 6 पॉइंट्स तक भी लिख कर चलोगे तो यू वुड बी ऑन अ सेफ साइड कि अच्छा हाँ 6 में से मेरे को 5 नंबर 4 नंबर तो मिल ही जाएंगे. तो ऑलवेज टारगेट 6 to 7 पॉइंट्स, तभी आप 5 पॉइंट्स एग्जाम में लिख पाओगे. ठीक है. नेक्स्ट वन आई कुड राइट इज लास्ट वन. फाइनेंसिंग के अंदर बेसिकली जब वो फाइनेंसिंग डिसीजन देख रहा है तो उसको कैश को भी संभाल के रखना है. बेसिकली मैनेजर लुक्स आफ्टर कैश. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग इज अगर मुझे कैश रेस करना है तो आई हैव टू मेंटेन रिलेशनशिप विद बैंक्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स. तो ये भी आपके फाइनेंशियल मैनेजर का ही रोल है कि आपको कैश का ध्यान रखना है और बाकी सबसे रिलेशन, क्योंकि जितना आपका रिलेशन स्ट्रांग होगा उतने ही आपको पैसे मिलेंगे. ठीक है. सो ओवरऑल अगर मैं आपसे पूछूं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, आप देखो फाइनेंशियल मैनेजर से अब मैं सीधा आ रही हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे. सो ओवरऑल इफ आई आस्क यू व्हाट एग्जैक्टली इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कैन यू गाइज नाउ टेल व्हाट एग्जैक्टली इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट. सो लेट्स जस्ट क्विकली डिस्कस. हाँ जी, मैंने बताया पहला पॉइंट फाइनेंशियल मैनेजर के 2 बेसिकली रोल्स हैं, कैपिटल बजटिंग, फाइनेंसिंग. फिर हमने बोला कैपिटल बजटिंग में उसको क्या डिसाइड करना है, टाइप ऑफ एसेट्स टू बी इन्वेस्टेड इन. फिर हमने उसको बताया कि हाउ कैपिटल बजटिंग इज अ कॉम्प्लेक्स डिसीजन. फिर हम आए फाइनेंसिंग डिसीजन पे, मैनेजर हैज टू डिसाइड ऑन द कैश टू बी रेज्ड. देन नेक्स्ट पॉइंट कैश कहाँ से रेज होएगा, वाया इशू ऑफ शेयर्स या फिर इशू ऑफ डेट. लास्ट वन फाइनेंसिंग डिसीजन लेते समय ही हैज टू लुक आफ्टर कंपनीज कैश और मेंटेन्स रिलेशनशिप विद बैंक्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स. तो 6 to 7 पॉइंट्स है, आपके ऊपर आप सेग्रीगेशन कैसे करोगे. वो आप ये कॉम्प्लेक्स डिसीजन जब आप एक्सप्लेन कर रहे हो, जैसे आपने बोला कि यू हैव टू डिसाइड ऑन द टाइप ऑफ एसेट्स एंड विच इज मोर फीजिबल एंड विच इज लेस कॉस्टली और विच इज गिविंग यू मोर रिटर्न. एसेट्स हम उसमें करेंगे जो हमें ज्यादा रिटर्न. तो आप ये कॉम्प्लेक्स डिसीजन जब आप एक्सप्लेन कर रहे हो उसी में एक और लाइन ऐड कर सकते हो. ठीक है. लेकिन एक पॉइंट को बहुत ज्यादा एक्सटेंड मत करना, मेक इट डिफरेंट पॉइंट्स.
बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप लोग 5 मार्कर्स में 10-10 पॉइंट लिख रहे हो और फिर 20 मार्कर्स के लिए आपके पास टाइम ना बचे। तो हमेशा टारगेट, हमेशा पहले एमसीक्यूज, 2 20 मार्कर्स, देन कम टू 5 मार्कर्स, ठीक है। अब मैं आपसे ओवरऑल पूछूं कि व्हाट एग्जैक्टली इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो आर यू गाइज इन अ पोजिशन टू कमेंट ऑन व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट? So financial management, can we say financial management is basically deciding on the type of assets to be invested in and deciding on how to raise finance for investing on those assets, ठीक है। Assets decision is complex because it involves deciding on the different assets. We have a different range of assets to be invested in. इसीलिए financial management मुश्किल है, क्यों? क्योंकि इतने सारे assets हैं और उसमें से हमें वो asset choose करना है जो कि मुझे maximum return देगा, जो कि less expensive होगा। और financial decision लेते समय भी आई हैव टू मेंटेन कैश, आई हैव टू लुक आफ्टर कैश, मुझे कैश को संभाल के रखना है, एंड देन आई हैव टू मेंटेन रिलेशंस। तो ये पूरा होता है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस वन क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस। सो राइट डाउन अ क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स। एक्सप्लेन द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. Explain the role of financial management in an organization. Explain the role of financial management in an organization. Commenting on why it is important. Commenting on why it is important and why it is difficult. Commenting on why it is important and why it is difficult. I am repeating the question. Explain the role of financial management in an organization. Commenting on why it is important and why it is difficult. Can be tested in both II as well as IFOA. This seems to be more of application, less of book work. Start attempting. We would be discussing in next 5 to 7 minutes.
2 more minutes. Done. So guys, start putting your answers in the chat section, everyone. हाँ जी बताओ. First point, like उसकी kind of a definition that it revolves around taking decisions regarding financing and capital budgeting. Then it is difficult and complex because there are many avenues and sources of financing and investment, and we have to choose between the best option. It is important because the organization's profitability actually depends upon these major decisions. And the last point, that it also involves maintaining relationship with stakeholders and managing cash, which is also a vital part of the organization. Okay. So good points at least कि हाँ पहली क्लास है और पहली बार पढ़ रहे हो सब्जेक्ट तो वैलिड पॉइंट्स हैं. ठीक है. Okay, so some of the students have started answering, so obviously all the points seem to be valid. सबने एक ही चीज़ लिखी है, पहले डेफिनेशन लिख दी, फिर आपने कैपिटल और फाइनेंसिंग को एक्सप्लेन कर दिया, फिर आपने बोल दिया कि अच्छा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम फर्दर डिसीजंस लेंगे कंपनी के लिए, और डिफिकल्ट क्यों है क्योंकि हमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, हमें बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना है. ठीक है. अब ये सबने लिखा है, लेकिन रिजल्ट तो सबका नहीं क्लियर होना, सिर्फ 50% मिलाना है, तो यू हैव टू सेग्रीगेट योर सेल्फ फ्रॉम अदर्स. ठीक है. तो नाउ लेट्स सी हाउ योर आंसर शुड बी मॉडिफाइड और हाउ यू हैव टू रीच टू द एग्जाम स्टैंडर्ड सोल्यूशन. क्वेश्चन क्या था? एक्सप्लेन द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. नो डेफिनेशन टू बी गिवन. पहला एरर. मैंने सीधा आपसे पूछा है एक्सप्लेन द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सो आई डोंट वांट टू वेस्ट योर 1 पॉइंट इन गिविंग मी डेफिनेशन, सो नो डेफिनेशन एट ऑल. स्ट्रेट फॉरवर्ड, कम टू द पॉइंट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली इन्वॉल्व्स मेकिंग डिसीजंस ऑफ एसेट्स एंड मेकिंग डिसीजन रिलेटेड टू द कैश टू बी रेज्ड. ये आपने पहला पॉइंट लिख दिया. फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली इन्वॉल्व्स decisions relating to the type of assets to be invested in and cash to be raised from those assets, and how the cash to be raised for investing in those assets. अब आपने अभी क्या करा था, जैसे अभी आप आंसर दे रहे थे, तो इम्पॉर्टेंट और एक चीज, तो हमने 2 चीजें बतानी है कि वाई इट इज इंपॉर्टेंट एंड वाई इट इज डिफिकल्ट. सो अगर आप इंपॉर्टेंट बता रहे हो तो पहले इंपॉर्टेंट के पॉइंट्स खत्म करोगे, आप डिफिकल्ट बता रहे हो तो डिफिकल्ट के पॉइंट्स खत्म करोगे. ठीक है. तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि वाई इट इज इंपॉर्टेंट. तो अगर मुझे जितने भी पॉइंट्स लिखने हैं, 2 या 3 पॉइंट्स, दे शुड बी टारगेटिंग टुवर्ड्स इंपॉर्टेंट, रेस्ट फिर मैं उसके टारगेट करूंगी डिफिकल्ट की. तो वाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज इसी के बेसिस पर हम लोग कंपनी में फाइनेंस ला रहे हैं. अगर ये डिसीजन गलत जाएगा तो ऑब्वियसली ऑल अदर डिसीजंस वुड बी रॉन्ग. सो फाइनेंसिंग और कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर 2 मेन डिसीजंस ऑन विच other decisions of a company are based upon. If, इसका next point, if there is any issue in any of these decisions, this could have serious consequences on running of the business. This could have serious consequences on running of the business. तो पहला पॉइंट हमने एक्सप्लेन किया, सॉर्ट ऑफ रोल एसेट्स वर्सेस कैश. देन हमने बोला कि दोनों ही डिसीजंस
वाइटल डिसीजंस हैं, बिकॉज इसी के बेसिस पे हम लोग बाकी डिसीजंस लेते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम ये डिसीजंस गलत लेंगे तो इट कुड हैव सीरियस consequences ऑन रनिंग ऑफ द बिजनेस, बिकॉज वी वुड बी चूजिंग रॉन्ग एसेट्स और वी वुड बी चूजिंग रॉन्ग वे ऑफ रेजिंग मनी. सो अगर मेरा फाइनेंशियल डिसीजन सही नहीं हुआ या मैनेजमेंट सही नहीं हुई तो होगा क्या कंपनी में, गलत एसेट्स आ जाएंगे या फिर रॉन्ग वे ऑफ रेजिंग फाइनेंस. दोनों ही चीजों से प्रॉब्लम क्या होगी. अगर मैं गलत एसेट्स भी चूज कर लूं या गलत वे ऑफ रेजिंग फाइनेंस चूज कर लूंगी तो दिक्कत कहां आएगी. अच्छा, अगर मैं गलत एसेट्स चूज करती हूँ तो व्हाट विल हैपन, रिटर्न प्रॉपर नहीं आएगा, यू वोंट बी एबल टू मीट योर लायबिलिटीज ऑन टाइम. सो रॉन्ग एसेट्स वुड लीड टू लेस रिटर्न और not being able to meet liabilities on time. अच्छा, अगर मैं गलत मेथड चूज करती हूँ फाइनेंसिंग का, उससे क्या होगा, यस, या तो डेट बढ़ जाएगा या इक्विटी बढ़ेगी, तो कॉस्ट पे इम्पैक्ट आएगा. मे बी आई एम नॉट चूजिंग द कॉस्ट इफेक्टिव मेथड. और मे बी हम कह सकते हैं ना टैक्स इम्प्लीकेशंस, डेट रेस करते तो हो सकता है टैक्स कम के बनना पड़ता. अब ये सब कुछ नहीं था अभी आंसर में, ठीक है. सो इट इज completely okay guys that this is just the first or second class. So in case even if you are not able to reach to these type of points, it's completely okay, but yes, you have to learn that what exactly the question demands from you. Financial management का मतलब ये नहीं है कि we are just restricting ourselves to capital budgeting और investment. वो सिर्फ एक पॉइंट पे खत्म हो जाना चाहिए. अब उसकी आगे फर्दर एक्सटेंशन ही आपका आंसर है. अच्छा, ये तो अब सारे इंपॉर्टेंस का हो गया. डिफिकल्ट क्यों है बेसिकली वैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट? Yes, so it's difficult because there are many different options to choose from. दिक्कत कहाँ है, बहुत सारे options हैं, मुझे एक चूज करना होता है, प्लस अगर आपको इतने सारे options में से कोई एक चूज करना है, कैन आई से you would require detail on each of the option. अगर कोई भी डिटेल मिस होएगी तो ऑटोमेटिकली आपका डिसीजन गलत हो जाएगा. So requires lot of details or information or assumptions related to different option. क्लियर है? सो लेट मी जस्ट क्विकली, अब ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हाँ यही सही आंसर, सारे पॉइंट्स यही हैं, बट दिस इज समथिंग विच इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम यू फॉर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस. तो रोल था फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, इसलिए हमने डेफिनेशन को कवर नहीं किया. डायरेक्टली पहला पॉइंट कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिवॉल्व्स अराउंड डिसाइडिंग ऑन द टाइप ऑफ एसेट्स और डिसाइडिंग ऑन हाउ द कैश शुड बी रेज्ड. Why it is important? Because these are two main decisions, and if these decisions are taken wrong, it can have serious consequences. For example, if we invest in wrong assets, it would lead to less return or we won't be able to meet our liabilities on time. If we choose the wrong way of raising finance, it would not be cost effective or could have serious tax implications. Difficulty is that there are many different options to choose from, so we have to decide on the option to choose, which requires a lot of details or information or assumptions related to different options, and sometimes these details are not there. तो मेरा डिसीजन गलत हो जाएगा. क्लियर है? ठीक है. अब यहाँ पे आपका बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट खत्म होता है. दिस इज वन पार्ट ऑफ चैप्टर 1. बस एक और चीज, कैपिटल बजटिंग डिसीजन जनरली क्या करते हैं ये लोग, सेग्रीगेट कर देते हैं कि हम एक काम करते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन एक को दे देते हैं और कैपिटल बजटिंग डिसीजन एक को दे देते हैं. तो जनरली जो कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेता है उसको कहते हैं CFO,
चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ अ कंपनी, एंड जो फाइनेंसिंग डिसीजन लेता है उसको कहते हैं ट्रेजरर। तो CFO का रोल क्या है? टाइप ऑफ एसेट्स चूज करना। ट्रेजरर का रोल क्या है? कैश हैंडल और रिलेशनशिप मेंटेन करना। तो अगर कंपनी छोटी है तो CFO और ट्रेजरर सेम पर्सन है। अगर कंपनी बड़ी है तो ट्रेजरर विल रिपोर्ट टू CFO and CFO may further report to Chief Executive Officer। एंड ये सब कुछ हमारा क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो यहाँ पे आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट खत्म होता है। दिस इज वन मेजर पार्ट ऑफ योर चैप्टर 1। क्लियर? अब नेक्स्ट क्लास में मेरा टारगेट क्या रहेगा? इसका एक और पार्ट है चैप्टर 1 का। आफ्टर दैट वी वुड बी डन विद चैप्टर 1। तो एक क्लास मोर फॉर कंसेप्चुअल एंड वन मोर क्लास फॉर पास्ट पेपर्स डिस्कशन। दैट मीन्स आई वुड रिक्वायर 2 more classes further for chapter 1। ठीक है? So that's it for the day from my side. Online students, any doubts, anything that you want to discuss, feel free to comment on the chat section. So that's it for the day. Thank you. In case there are no doubts.